ہیلو گائز، گریٹر اسرائیل، یہ ہے اسرائیل کا پلان اور اس کے بارے میں ویڈیو بنائی ہوئی ہے ڈاکٹر اسرار احمد نے. سو دیکھ لیتے ہیں ویڈیو. تو آپ بھی دیکھو، ہم دیکھتے ہیں. لیٹس. اب نوٹ کر لیجئے یہ کتابیں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو کتاب الملاحم میں پڑھیے. بدترین عذاب عربوں پر آیا کھڑا ہے، سروں پر ٹنا ہوا. عذاب؟ بدترین ایسی جنگ ہونی ہے الملحمۃ العظمیٰ، بھائی صاحب، جس کو کہ میں بھی آپ کو گواہی پیش کر دوں گا، جسے کہا گیا ہے دی لاسٹ کروسیڈ. The last crusade. بش نے بھی کروسیڈ کا لفظ بول دیا تھا، پھر واپس لیا اس نے. نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں. فقیہ بھائی مست حدیث سے صاحب، اور اندے بادخار اچھا. کروسیڈ کہہ کر پھر واپس لیا. یہ کروسیڈ اس کے اوپر جس قدر نقصان ہونا ہے عربوں کا. گریٹر اسرائیل بنے گا. یہ عراق، شام، اردن، سعودی عرب کا کچھ شمالی علاقہ، سعودی عرب بھی. ترکی کا جنوبی علاقہ، مصر کا صحرائے سینا، اور اس کے ساتھ ہی جو بہترین اس کا زرخیز ترین علاقہ ڈیلٹا آف نائل، یہ سب یہودیوں کے قبضے میں. اسرائیل اتنا بڑا ہو جائے گا، افریقہ تک آ جائے گا، اوپر بھی آ جائے کہا گا. گیا الملحمۃ العظمیٰ. عیسائی 80 علم لے کر ہے مسلمانوں تم پر حملہ آور ہوں گے، سیریسلی اور ہر علم کے نیچے 12,000 فوج، 12,000. 9.5 لاکھ فوج. یہ نیٹو کی تیاری کس کے لیے ہو رہی ہے؟ بھائی صاحب، جب یو ایس ایس آر کا خاتمہ ہوا تو پوچھا گیا تھا نیٹو چیف سے، اب کس لیے؟ تمہارا وہ دشمن تو ختم ہو گیا، ہاں. اب ہمیں اسلامک فنڈامنٹلزم سے نمٹنا ہے. جانتے ہیں خطرہ یہی ہے. اب اسلام ابھر سکتا ہے. مسلمانوں کے سینوں کے اندر وہ آگ ہے، اوپر خاکستر آ گیا ہے، تم پہ اٹھانا بیٹھنا. یہ اندر تو انگارہ ہے، اوپر سے راکھ ہے. اسے دھوکہ نہ کھا جانا ان کے دلوں کے اندر. اور بش نے کہا تھا مسلمان چاہتے ہیں کہ ہسپانیہ سے لے کر انڈونیشیا تک نظام خلافت قائم کریں. اور میں حیران ہوا تھا کہ اس کمبخت کو ہسپانیہ کا خیال وہی ہمیں تو کبھی آتا ہی نہیں، ہم تو بھول گئے. ہاں. وہ تو 500 برس پرانی بات ہے، جبکہ وہاں سے ہمیں نکال دیا گیا تھا. اگرچہ اقبال نے کہا تھا ہے ارض فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا. ہسپانیہ میں تو 800 سال حکومت کی مسلمان ہے، اور ابھی 500 برس ہی گزرے ہیں نا. یہودی تو ارض مقدس سے 2000 سال نکالے گئے. انہیں لا کے آباد کیا گیا، عربوں کے سینے میں خنجر پھونک دیا گیا. وہ چھوٹا سا ملک جو چاہتا کرتا، کوئی پوچھنے والا نہیں. امریکہ جیسے اپنے بیٹے کی حفاظت کرے ویسے کرتا. ہاں. اور حضور نے فرمایا ہے وہ جنگ جب ہوگی تو ایک باپ کے اگر 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ختم ہو جائیں گے، ایک بچے گا. او مائی گاڈ. حدیث صحیح. یار یہ کتنی شاکنگ پریڈکشن کی ہے انہوں نے. اور آپ نے فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب. عربوں کے لیے ہلاکت ہے، عربوں کے لیے بربادی ہے اس شر سے عربوں کے لیے بربادی. اور آج جس طرح انہوں نے ان کی تہذیب کو اختیار کر لیا. دبئی جا کر دیکھیے، بدترین مغربی معاشرہ جو ہے وہ دبئی کے اندر اپنے قائم کر کے دکھا. دبئی تو بہت ماڈرن ہو گیا. وہی اب سعودی عرب اس راستے پر پڑ رہا ہے. اور اس کے بعد نمبر 2 پر جو ہے ہم پاکستانی ہیں. پاکستانی. لیکن میں اس کے وہ پہلی بات جو کہہ رہا ہوں وہ تو یقینی ہے، اس میں تو احادیث صحیحہ موجود. اگرچہ اس کے بعد پانسا پلٹے گا، پھر حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، اور وہ گریٹر اسرائیل گریٹر گریو یارڈ بنے گا یہودیوں کا. ایک ایک یہودی قتل ہوگا اور دفن ہوگا. یہ بات میں ہونا ہے. میں پہلی بات فرض کر رہا ہوں. وہ پانسا پلٹے گا جب پلٹے گا. ابھی جو سامنے ہے وہ کیا ہے؟ جس ملحمۃ العظمیٰ کہا حضور نے، جسے آرمگیڈون کہتے ہیں عیسائی. آرمگیڈون کی اگر کہیں جا کر آپ دیکھیں گے، آپ ڈکشنری میں مانی کیا لکھا ہے؟ کیا؟ A very big war which will be fought between the forces of evil and good before the end of this world. Before the end of this اس world. دنیا کے خاتمے خاتمے سے سے پہلے. وہی
खैर और शर की कुव्वतों के दरमियान बहुत बड़ी जंग होगी। हाँ अर्मगदून उसे कहते हैं अरबी में, और अर्मगडॉन उसे कहते हैं अंग्रेजी में, और ये बाइबल की आखिरी किताब के अंदर है, ओ जो इसमें कि मुकाशिफात यूहन्ना, रेवलेशंस ऑफ सेंट जॉन। ये तो मैं कह रहा हूं यकीन के साथ, और ज्यादा दूर नहीं आया चाहता है, इसलिए कि यहूदियों का और ईसाई जो कंजर्वेटिव्स हैं, नेओ कंजर्वेटिव्स, उनका 5 निकाती एजेंडा है मुत्तफक अलैह, जिसके तहत ये जंग सलीबी शुरू की गई। तो सुन लीजिए आप। क्या? आर्मगेडोन नंबर 1, ग्रेटर इजराइल कायम हो जाना उसके नतीजे में नंबर 2, नंबर 2 मस्जिद अक्सा और कुबत सगरा को गिराना नंबर 3, ओ जेरूसलम पे हमला। वहां 3rd टेम्पल, वो मस्जिद जो हजरत सुलेमान ने बनाई थी 1000 कबल मसीह में, फिर बर्बाद की थी नबूकदनेस्सर ने, हाँ दोबारा बनाई गई, फिर दोबारा खत्म हुई 70 ईस्वी तक गिरी पड़ी है। उनका खाना काबा गिरा हुआ है 70 ईस्वी से लेकर आज तक। एक दीवार है वेलिंग वॉल, जहां जाते हैं, रोते हैं, पीटते हैं, मातम करते हैं, हाँ 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 ओ वहां वो बनेगा 3rd टेम्पल। 3rd टेम्पल। 4, उसमें लाकर रखा जाएगा तख्त हजरत दाऊद का। ये तख्त कहाँ है इस वक्त? कहाँ? ये लंदन शरीफ के अंदर, ओ जो उनकी पार्लियामेंट का जो चर्च है, वेस्टमिंस्टर एबे, उसमें रखा हुआ है। अच्छा। एक पत्थर था जिस पर बिठाकर हजरत दाऊद की ताजपोशी हुई, फिर हजरत सुलेमान की हुई, फिर वो पत्थर रख दिया गया जब हजरत सुलेमान ने बनाया हैकल मस्जिद अक्सा, वहां रहा वो। हर बादशाह जो था यहूदी उसी के ऊपर बिठाकर उसकी ताजपोशी होती। सन 70 में टाइटस ने गिराया उसे हैकल को, वो पत्थर ले गया, वहां से रोम गया, रोम से आयरलैंड गया, आयरलैंड से स्कॉटलैंड आया, स्कॉटलैंड से इंग्लैंड आया, और अब वो रखा हुआ है 14वीं सदी ईस्वी से आज तक। वो वेस्टमिंस्टर एबे में रखा हुआ, एक कुर्सी की सीट में उसे बना दिया गया। अच्छा। अब अंग्रेजों में कोई मलका हो, कोई बादशाह हो जिसकी भी ताजपोशी होनी है, उसमें हो। क्या बात? ये लाकर रखा जाएगा 3rd टेम्पल, और इस पर यहूदियों के ख्याल के मुताबिक उनका मसीहा आएगा, जो मसीह दज्जाल होगा। ओ मसीहा दज्जाल होगा, मतलब शैतान। ईसाइयों के ख्याल के मुताबिक हजरत ईसा आएंगे, वो हमारा भी ख्याल है हजरत ईसा आएंगे अलैहिस्सलाम। हमारा ये तो बात की बात है ना, इस वक्त जो मैं अर्ज कर रहा हूँ, अरबों पर बहुत बड़ा अज़ाब, और पाकिस्तान का मामला बनता ही है, मैं यकीन से नहीं कह सकता। हैंगिंग इन द बैलेंस, हो सकता है अल्लाह ताला आप पर रहम फरमाए, हो सकता है, अगर जो उसी की शराइत हो। चमन के मालिक अगर बना ले मुआफिक अपना शार, अब भी चमन में आ सकती है पलट कर चमन से रूठी बहार, अब हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि अल्लाह ताला ने मुअज्जिज़ाना तौर पर हमें मुल्क दिया, हमने अल्लाह से बकायदगी की, वादा खिलाफी की, गद्दारी की, लाजा सजा दी जाए और हमसे ये मुल्क छीन लिया। जस्ट पॉसिबल, हो सकता है। दूर का समझिए, अनहोनी बात न समझिए। जो घेराव हो रहा है आपका, आपके मगरिब में नेटो फोर्सेस और मशरिक में भारत फोर्सेस, भारतीय फोर्सेस गिद्धों की तरह बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं। पाकिस्तान और डिस्टेबलाइज हो जाए, यहाँ और बदअमनी हो जाए। लाहौर में फिर आज धमाके हो गए, 2 दिन पहले का धमाका मैं सह के आया हुआ हूँ, आपके सामने बैठा हूँ, वो जाने बची नहीं। जो हमारी अकेडमी का हश्र हुआ मैं आपको ये बता सकता हूँ। ये सारा क्यों हो रहा है? ताकि यहाँ बदअमनी हो जाए और हमें जवाब मिल जाए, मगरिब से नेटो फोर्सेस दाखिल हो जाए, मशरिक से भारतीय फोर्सेस आ जाए, और हमारे एटमी दाम तोड़कर और फिर हमें भारत के सामने डाल दिया जाए। नाउ डू एज यू लाइक। ये उनका नक्शा है, होगा क्या वो अल्लाह जानता है। होगा वो जो अल्लाह चाहे, लेकिन अल्लाह का चाहना जो है वो किस पर मुनहसिर है। यहां इनकलाब बर्पा करो, यहां इस्लाम लाओ, अगर धंधों में लगे रहोगे तो वो खुद ब खुद नहीं आ जाएगा। सहाबा ने जाने दी थी, कितनी तकलीफें उठाई। सीरियसली भाई, सीरियसली 12 बरस तक मक्की दौर के अंदर बानशा दरवेशी दर साजो दमादम तक
जो पुख्ता शबी खुदरा पर सल्तनत जंग कन। यौम ताइफ याद है, जो हजरत आयशा फरमाती है कि मैंने पूछा था हुजूर से कि यौम उहद से ज्यादा सख्ती भी आप पर कभी आई? यौम उहद पर क्या हुआ? क्या? तलवार का वार पड़ा था आपके चेहरे मुबारक। ये जो रुखसार की हड्डी है, इसके अंदर वार गया है। ऊपर खौद की 2 कड़ियां थी, वो इसमें घुस गई। हाय। 2 दंदान मुबारक शहीद हुए। वो खौद की कड़ियां एक साहबी ने अपने दांतों से पकड़ के खींचने की कोशिश की, दांत Seriously? निकल के वो नहीं निकले। क्या जतन करके निकाली गई होगी, तो खून का फव्वारा आया, इतना खून गया है कि आप बेहोश हो गए, गिर गए। हो तो बेचारे। मशहूर ये हो गया कि आपका इंतकाल हो गया, शहादत हो गई। ये सीरत कभी पढ़ी है? हजरत आयशा के होश का तो यही दौर था ना। यौम ताइफ में जो हम क्या थी, बच्ची थी। यार उस टाइम लोग भी अलग ही थे यार, सीरियसली। 3 दिन तक हुजूर मक्के की गलियां और वहां के उबाश लोग पथराव कर गए थे, इस उम्मीद में कि शायद वहां का कोई सरदार ईमान ले आए। तो यहां तो अबू तालिब भी फौत हो गए। यही दुनियावी सहारा था, खानदानी सहारा था अबू तालिब के जरिए। और घर में एक दिलजोई करने वाली रफीका हयात थी, वो भी, उनका भी इंतकाल हो गया। ओके। आपने कहा ये आमुल हुज़्न है। अब तो सबको तय हो गया कुरैश को कि आप जैसे कत्ल कर दो। इसीलिए आप गए ताइफ, शायद वहां का कोई बड़ा सरदार माने, ईमान ले आए, तो मैं अपना मरकज इधर शिफ्ट कर दूं। तीनों से मिले हैं, तीनों ने वो जवाब दिए, निकल जाओ यहां से, मैं तुम्हारे साथ बात भी करने को तैयार हूं। अच्छा, तुम्हारे सिवा कोई नहीं मिला था अल्लाह को नबी बनाकर भेजने के लिए? देखो जाओ, मैं बात नहीं करना चाहता, हो सकता है मैं बेइज्जती कर बैठूं, वाकई तुम अल्लाह के नबी हो तो मैं मारा जाऊंगा, जाओ जाओ जाओ। ये सुलूक मोहब्बत के साथ। और फिर छोकरों को, स्ट्रीट अर्चिन्स जिन्हें आप कहते हैं, इशारा किया था, खबर लो, पथराव हो रहा है। साथ में है ही नहीं, एक आदमी से, ज़ैद इब्न हारिसा। अब सामने से पत्थर आ रहे हैं तो हजरत ज़ैद आगे आ जाते हैं, ढाल बनते हैं, मुझे लगे पत्थर उजू कर रहे हैं, आप पीछे से आ रहे हैं। चारों तरफ से तो ढाल नहीं बन सकता। सही बात है भाई यार। जिस्म लहूलुहा, खून जाकर जूतियों में जम गया है, जूती उतर नहीं सकता। फिर वहां से बाप से मुझे दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा इलैका अश्कू ज़ौफ़ क़ुव्वती व क़िल्लत हीलती व हवानी अलन नास। अल्लाह तेरी जनाब में फरियाद लेकर आया हूं अपने कुव्वत की कमी का, अपने वसाइल की कमी, और जो जिल्लत तो खारी हो रही है लोगों के साथ। इला मल तक़िरुनी, मुझे किसके हवाले कर दिया? इला बाइदी ये तजहमुनी, ये मेरे ऊपर हुजूम करके आ जाए, हमला करे। और आदमी मन लगता हमरे, ये दुश्मन के हवाले मेरा मामला किया, जो चाहे करते हो। लेकिन फिर अब्दियत गालिब आती है, इल्लम यकुन अलैहि गज़बुक फला उबाल। अल्लाह अगर तू नाराज नहीं है तो मुझे कोई परवाह नहीं। वही सर तकदीर खम है जो मिजाज यार पे आ। मुझे अंदेशा ये है कि तू नाराज तो नहीं है। क्या बात है। अरे देखो इमोशनल हो गए हैं। सैकड़ों सहाबा ने जानो का सीरियसली यार काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। और इसमें जो डॉक्टर इज़रार अहमद है, उन्होंने हमेशा की तरह प्रेडिक्शन करी। उन्होंने प्रेडिक्शन की गई कि कैसे जो इज़राइल है उसकी लड़ाई हो सकती है। और ये भी बोला गया कि जैसे नेटो का भी मतलब कि काफ़ी बोला गया कि ऐसा भी हो सकता है कि जो पाकिस्तान है वो भारत चले जाए, कुछ ऐसे करके, और इज़राइल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, काफ़ी हिस्से तक फैल जाएगा। ये भी, इस चीज़ की भी प्रेडिक्शन की गई है। फिर उन्होंने पीछे हिस्ट्री को लेकर वो गए, वहाँ पे उन्होंने एक सहाबा की स्टोरी बताई कि कैसे जो वो सहाबा थे उनके मतलब हाथ में बेड़िया लगी थी, गले में बेड़िया थी, तो वो उसको दांत से निकाला और फिर लास्ट में वो मर गए। तो उन्होंने ये भी चीज़ें बताई हमें। तो यार जो मोस्टली जो डॉक्टर इज़रार अहमद है, उनकी जितनी भी प्रेडिक्शन होती है वो काफ़ी हद तक सच ही हो जाती है। और काफ़ी हम लोगों ने इनकी वीडियोस देख रखी है। तो अब पता नहीं अगर ये इनकी जो प्रेडिक्शन है वो सच में हो गई तो यार सीरियसली बहुत ज़्यादा
डरावना चीज होगी फिर। वही इसराइल देखा जाए तो अभी तक काफ़ी छोटा है, लेकिन जो उनकी ग्रेटर इसराइल वाली प्रेडिक्शन है वो तो भाई बहुत ही मतलब बड़ा हो जाएगा। लाइक वो तो इजिप्ट में फैल जाएगा, फिर उसके बाद वो कहीं ना कहीं ऊपर फैल जाएगा, हर जगह चारों तरफ वो फैल सकता है। तो अगर ऐसा हो गया तो एक्चुअली जो वो कह रहे हैं कि अरबियों के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स आने वाली है, वो हो ही सकता है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। तो ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय। बाय।